Assalamu alaikum. I am Shahzaid Ahmad and I am taking third class with BS third in course of Anglo-Saxon to Restoration period history. As we have discussed in previous lecture about Norman conquest as well as the reign of William the Conqueror, now, in this, first of all, I will give you the preview of our previous lectures, in which we have covered different aspects of English king, as we have first covered about Edward the Confessor, and then we moved to William the Conqueror, whose reign in England started in 1066 AD. After that, we have moved to the son of William the Conqueror, William Rufus, who is also considered, this one is considered William the First, and this one is considered William the Second in the history, if you don't have to get confused in these things. And after that, the third son of William the Conqueror became the King of England. And after that, we will discuss now in detail that what happened after the reign of Henry the First, how the kingdom of England shifted from one family to another family, and how it was controlled by Stephen of Blois, and who was Stephen of Blois, as we have already discussed about him. So William the Conqueror had a daughter whose name was Edella, as we have explained in earlier lectures, and Stephen of Blois is her son. Blois is a name of a place in France, so they were from Blois, and Stephen of Blois came and he conquered and he claimed the throne of England, as Matilda was far away from her land. So in upcoming slides, I will discuss that how Stephen of Blois was controlling England and what was the role of Matilda, and we will also explain that what was the relationship between them, whether they were in war, whether there was peace in England. So we will discuss it in upcoming slides. So if we see this slide here, we can see that there are different places which is directly connected to England. These are places of France, but as you see, these are places of France. Normandy we have already discussed, is Brittany, this is new, and Anjou we have already discussed it, and Blois we have already discussed it. So as we have mentioned that Stephen was from Blois, Geoffrey, Matilda's husband, he was from he was from Anjou, so Normandy was the land of Henry the First. So we have already discussed these things. I have just planted this map in these slides to clarify the point that France was distributed in these lands. Like there was a Normandy, there was Blois, there was Anjou, and we will also discuss in last slide that how these lands were distributed in different kings. So after that we will move to another slide which is very important, and in which we will discuss about the main problem between Matilda and Stephen, that how these problems were solved, and how these problems have created a new kingdom in Britain also. So as we have discussed that Stephen claimed the throne of England and Matilda was in Anjou. At that very time, Matilda was in Anjou, at the place of France, in her husband's land. So when he claimed the throne of England, claimed the throne of England after 4 years. Matilda waited, and after creating an army, after making a stronger army, she was now ready to defeat Stephen and to claim the throne of England, as she was promised when her father Henry the First was alive. She was Different nobles had taken the oath to accept her as a queen of England after the death of her father. So she was claimant to the throne of England. But as we have mentioned that Stephen was the son of Edella, and he claimed the throne of England, and he considered himself to be the best claimant to the throne of England. Now, when Matilda came to England, as Stephen was already in England, now I have drawn a line. This is a straight line which shows that he came from Blois without any restrictions. So these people accepted him, and after 4 years, Matilda, which is shown in dotted lines, which shows that she came from Anjou, and also shows that she was restricted to come to England because of Stephen of Blois. Now, when she came to England, there was a civil war. I mentioned 4 years, that after 4 years of Stephen, she attacked England. Now there was a civil war. Why there was a civil war? Because first of all, I want to clarify the concept of civil war. Civil war is internal dispute.
इंटरनल डिस्प्यूट मीन्स कि आपकी कंट्री में जो है कुछ अपनी ही कंट्री के लोग जो है वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज नॉट लाइक अ टिपिकल वॉर इन विच वन कंट्री अटैक अनदर country. This was a civil war in England, and some nobles, half of the nobles, were in support of Matilda, and some were supporting Stephen of Blois. So it was a civil war. ये civil war जो है कुछ weeks तक चली, and after that they had a treaty. They had signed a treaty. अभी जो है मैं आप लोगों को treaty के बारे में बता दूं कि treaty जो है उसको हम अगर उर्दू में देखें तो इसको मुआहदा कहते हैं कि इनके बीच जो है एक treaty sign हुई in which they have signed that Stephen would remain king of England till his death. लेकिन उसके बाद जो उसके एज हैं वो जो है क्या करेंगे, वो इंग्लैंड के किंग नहीं बन सकते. कौन इंग्लैंड का किंग बनेगा? आफ्टर द डेथ ऑफ स्टेफन, द क्लेमेंट टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वुड बी मिटिल्डा's सन. और मिटिल्डा का सन जो है वो कौन था, इसको जो है हम आगे की स्लाइड्स में जो है डिटेल से हम डिस्कस करेंगे. नाउ आई वुड गिव यू द समरी ऑफ दिस सिविल वॉर दैट मिटिल्डा आफ्टर द sorry, I will repeat it. Stephen became a king of England after 4 years of his throne. Matilda attacked England, and there was the civil war broke out in England. After that, half of nobles were supporting Matilda, and some nobles were also supporting Stephen of Blois to be the king of England. In previous lecture, I have also mentioned that why many nobles were supporting Stephen, because of two reasons which I have already discussed. So ये जो था सिविल वॉर हुआ, उसके बाद जो है एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें ये साइन हुआ कि मिटिल्डा के जो आगे सन है वो जो है वो किंग बन जाएगा इंग्लैंड का स्टेफन के मरने के बाद. इसके बाद जो है हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसके बाद जो है स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद जो है वो क्या हो जाता है. नाउ सी, Stephen of Blois, after the treaty which they had signed, the treaty, इनके बीच जो treaty हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ी कि ये जब दोनों ट्रीटी साइन करते हैं, एक मुआहदा साइन करते हैं, तो क्या होता है कि उसके 1 ईयर बाद या कुछ मंथ्स बाद ये जो है क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है. इसकी डेथ हो जाती है, स्टेफन ऑफ ब्लॉइस की जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. नाउ वी हैव इन हैंड, वी हैव, एज इट वाज साइंड इन दिस ट्रीटी, दैट हेनरी द सेकंड, हु इज द सन ऑफ मिटिल्डा, ही वुड बिकम अ किंग ऑफ इंग्लैंड. नाउ इससे पहले के मैं डिस्कस करूं कि हम जो है हेनरी द टू जो है उसको डिस्कस करने से पहले आई वांट टू डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट द लैंड्स व्हिच विल बी गिवन टू हेनरी द सेकंड. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट इंग्लैंड जो था वो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मंडी इम्पोर्टेंट था. फिर इससे प्रीवियस के लेक्चर में हमने ये भी जाना कि ब्लॉइस भी हमारे लिए अभी जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ एंजू भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है. नाउ इसके बाद जो है एक और जगह जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस में जो है वो हमारे लिए आएगी, तो उसको हम आगे की स्लाइड में जो है वो डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ हेनरी फिफ्थ वाज हाउ हेनरी फिफ्थ जो है उनका कैसे जो है रेन स्टार्ट हुआ और कैसे जो है उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो किया, अपने रेन को आगे बढ़ाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो था एक एजुकेटेड बंदा था, एंड ही वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड मींस दैट ही न्यू हाउ टू कंट्रोल पीपल, एंड ही फॉलोड वेरी रूथलेस पाथ. लाइक वो इंतहाई जालिम किस्म का इंसान था. जालिम इन अ सेंस, नॉट इन अ सेंस कि वो किसी को भी मार देता था, लेकिन अगर किसी को सजा आ जाती थी तो उसको विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिली सेकेंड ही वुड किल हिम और बर्न हिम. तो इस तरह का बंदा था कि अगर कोई उसके खिलाफ वर्जी कर ले या उसको कोई धोखा दे दे तो उसको जो है सजा देने में जो है वो कोताही नहीं करता था, बल्कि उसको जो है डायरेक्ट सजा दे देता था. सो उसके बाद जो है ये एक फैक्ट है जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाय द वे फॉर इन्फॉर्मेशन आई वुड ऐड के उसके जो है 34 ईयर्स का रेन उसने जो है वो किया. मींस बादशाहत उसकी कितनी थी, 34 ईयर्स की बादशाहत थी उसकी, और उसमें जो है उसने सिर्फ और सिर्फ 14 साल जो है वो इंग्लैंड में गुजारे. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कि why he has spent only 14 years in England, and rest of life वो कहाँ पे था. तो ये जो है हम आगे की स्लाइड में इसको भी जो है हम एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद जो है the most important thing about Henry the second, which we will discuss in upcoming lectures when we will discuss about Chaucer. चौसर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, ही इज़ अ पोएट, इंग्लिश पोएट है जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं. इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो थॉमस बैकेट का हम एक बार फिर जो है वो इस पे जो है डिस्कशन करेंगे. लेकिन अब तक आप लोग ये जान लें कि थॉमस बैकेट जो था एक पॉयस बंदा था, एक रिलीजियस बंदा था, एक बिशप था ये, और इसकी वजह से जो है हेनरी द सेकंड की वजह से जो है इसकी डेथ हो जाती है. मीन्स हेनरी द सेकंड जो है उसको किल कर देते हैं या किसी के थ्रू जो है उसको मरवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है हेनरी द टू को बहुत ज़्यादा जो है वो आगे नुकसान पहुंचाना पड़ता है, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में या आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे.
करेंगे कि हेनरी द थर्ड सेकंड के 3 डिस्प्यूट्स थे जो हम आगे की लेक्चर्स में जो है हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. नाउ एज we have already discussed it that England, Normandy, Blois and Anjou were under the control of Henry II. Automatically जो है वो आ जाते हैं. Now I will tell you people that how England became England came under Henry II, how Normandy and then Blois and then Anjou कि इनकी रिलेशन क्या थे कि ये सारी जगहें जो है वो हेनरी II को मिली. ये चीज़ जो है हम आगे के उसमें स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे. ये आपको मैप दिखाई दे रहा है जो कि ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट स्मूथली. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जगह जो है जो जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, सही है, जिसको हमने पहले ही उसमें क्लास में डिस्कस किया था. हम इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन का नाम देते हैं इस जगह को, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लैंड को कंसर्न करते हैं तो हम और चीज़ों को छोड़ देते हैं. ये इंग्लैंड की जगह है जिसमें लंदन, विंचेस्टर ये चीज़ें आ जाती हैं. ये इसको किससे मिली थी? इसके मदर से. मदर का इसका क्या नाम था? मेटिल्डा. सही है. अभी आप लोग कहेंगे कि मेटिल्डा तो क्वीन बनी नहीं थी तो कैसे इसे मदर से मिली थी? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इसको स्टेफन से मिली थी जो कि इसका कज़न था, लेकिन हम जो है क्या कहते हैं कि स्टेफन और इनकी लड़ाई के बाद ही हेनरी II को मौका मिला कि वो जो है इन चीज़ों को इनहेरिट करे. उसके बाद ये नॉर्मंडी का इलाका भी इसकी मदर के कंट्रोल में था, मींस स्टेफन के कंट्रोल में था, लेकिन ट्रीटी के बाद जो है वो क्या है हेनरी को जो है हेनरी II को मिल गया. ये चीज़ें तो हमारी समझ में आती हैं कि विलियम द कनकरर के आने के बाद जो कि सबसे पहला फ्रेंच किंग था जो इंग्लैंड आया था, अगर आप लोगों को याद हो. उसके बाद जो है ये इलाका और ये इलाका ये तो इंग्लैंड के ये तो आपस में किंग्स के बीच में आ गए थे. अभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कशन के बारे में है कि और चीज़ें कैसे जो है वो इनकी गिरफ्त में जो है वो आई है हेनरी II की गिरफ्त में. अभी ये जो है ये मैप आपको मैं सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे, सो यू विल इजीली गेट द कॉन्सेप्ट. अभी यहाँ पे जो है एंजू जो है इसके फादर से, किसके फादर से? हेनरी II के फादर से इसको मिला जिसका नाम क्या था? जॉफरी. सही है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि मेटिल्डा का हस्बैंड था. और उसके बाद जो है अगर हम देखें कि ब्लॉइस की जगह जो कि हेनरी II को नहीं मिली. अभी यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट कि ब्लॉइस की जगह तो स्टेफन की थी, तो स्टेफन के मरने के बाद जो है वो भी हेनरी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब स्टेफन मर गया तो इसकी जगह जो है वो कुछ फ्रेंच लॉर्ड्स थे, उन्होंने जो है ये जगह ले ली. अभी जो है यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है जो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे. अभी यहाँ पे जो है एक्विटीन का एक और इलाका आ गया है, एक्विटीन, जो कि इसको कहाँ से मिला है? जो कि इसको इसकी वाइफ से मिला है. इसकी वाइफ का क्या नाम है ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप लोगों को अभी सिर्फ इतना सुनना है कि इसकी शादी भी हुई थी. एलेनोर इसका नाम है, सही है. उससे इसकी जब शादी होती है तो इसको ये जगह भी जो है वो मिल जाती है. ब्रिटेनी के बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन इतना आपको याद हो कि इसका एक बेटा था, मतलब ज़्यादा बेटे थे इसके, लेकिन एक बेटे के थ्रू जो है इसको ये जगह मिल गई थी. सो आई थिंक आई हैव फॉलोड व्हाट यू हैव डिमांडेड के सर उर्दू और इंग्लिश दोनों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. अभी जो है ये आप लोग पे है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई इशू हो तो आप मुझसे काइंडली पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.